مجھے میری محبت نہ مل سکی۔ میرے والد سیر ناصر کی کوٹھی پر چوکیدار تھے اور میرا بھائی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ دونوں کی تنخواہوں سے ہی گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن سیر صاحب کی کوٹھی پر ڈاکو آ گئے۔ میرے والد نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے کلاشنکوف کا برسٹ مار کر انہیں گیٹ پر ہی شہید کر دیا۔ اس شور پر محلہ جاگ اٹھا، لوگ گھروں سے نکل آئے تو ڈاکو بھاگ گئے، مگر میرے والد نے فرض نبھاتے ہوئے جان دے دی۔ اس کے بعد ہمارے مشکل دن شروع ہو گئے۔ گھر کا سارا بوجھ زبیر بھائی کے کاندھوں پر آ گیا۔ اس کی تنخواہ بہت کم تھی، اس لیے ماں کو سیٹ کے گھر نوکری کرنا پڑی۔ اسکول کا خرچ نہ ہونے کی وجہ سے میری تعلیم رک گئی اور میں آگے نہ پڑھ سکی۔ اب میں سارا دن گھر پر رہتی اور ماں کو روتے دیکھتی تو مجھے بھی رونا آ جاتا۔ وقت اسی طرح غم میں گزرتا رہا۔ والد کی وفات کو 5 سال گزر چکے تھے اور اب میری عمر 15 برس ہو چکی تھی۔ اب میں اکیلے گھر میں گھبرانے لگی، اس لیے ماں مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میں ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی، جس پر سیٹھانی مجھ سے خوش رہتی تھی۔ ادھر بھائی یکسانیت سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک تو محنت زیادہ، اوپر سے مالک تنخواہ نہیں بڑھاتا تھا۔ گھر کا خرچ پھر بھی پورا نہ ہوتا کیونکہ سیٹھانی امی کو کم تنخواہ دیتی تھی اور سارا دن کام کرواتی۔ بس ایک فائدہ یہ تھا کہ بچا ہوا کھانا مل جاتا تھا اور مجھے اکیلے گھر میں نہیں رہنا پڑتا تھا۔ اچانک بھائی بیمار پڑ گیا اور کئی دن کام پر نہ جا سکا۔ فیکٹری کے مالک نے اسے خوب ڈانٹا اور آدھی تنخواہ بھی کاٹ لی۔ اس واقعے کے بعد بھائی بد دل ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے تو میں نوکری نہیں کروں گا۔ مالک کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے بھائی کو نوکری سے ہی نکال دیا۔ بھائی گھر پر بیٹھ گیا۔ اس نے نئی ملازمت تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ امی سمجھاتی کہ کوئی کام ڈھونڈ لو، لیکن وہ الٹا ماں سے جھگڑنے لگتا۔ اب اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ اگر کہیں تھوڑا کام مل جاتا تو کر لیتا تو امی کو بہت کم پیسے دیتا، باقی باہر خرچ کر آتا۔ ایک دن وہ جلدی گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہا کہ کچھ نہیں کھانا، طبیعت خراب ہے۔ میں نے جا کر امی کو بتایا تو معلوم ہوا کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ تب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ہماری واحد امید بھی برباد ہو گئی۔ صبح امی بھائی کے کمرے میں گئی اور نشہ کرنے پر ڈانٹنے لگی تو اس نے ماں کو دھکے دیے۔ میں ماں کی ڈھال بنی تو مجھے بھی مارا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ پوری رات گھر نہ آیا۔ ہم ماں بیٹی روتی رہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ اگلی رات نصف شب کے قریب وہ گھر آیا۔ ماں سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کھانے کا پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں بھی مایوس ہو کر سو گئی۔ جانے کس پہر اس نے ماں کے صندوق کا تالا توڑا اور جتنا زیور اور پیسہ تھا سب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ امی کو بیٹے کے چلے جانے کا شدید صدمہ ہوا۔ وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر دبائے رکھتی اور اسی غم نے ان کا دل کھا لیا۔ وہ بیمار پڑ گئیں۔ سیٹھانی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر بیٹے کی گمشدگی اور جدائی ایک ایسا دکھ تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ کچھ دن وہ کام پر جاتی اور کچھ دن چارپائی پر پڑی رہتی۔ اب میں ان کی جگہ سیٹھانی کے گھر صبح جاتی اور شام کو واپس آتی۔ کام اتنا زیادہ ہوتا کہ میں تھک کر چور ہو جاتی۔ سیٹھ صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، جمال۔ وہ شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور چھٹیوں میں گھر آتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی سلجھا ہوا، نرم دل اور غریبوں کا ہمدرد نوجوان تھا، مگر اس کی ایک بات مجھے پسند نہ تھی کہ وہ اکثر میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ناز، تمہارے والد نے ہمارے تحفظ کے لیے جان دی تھی۔ میرے ڈیڈی کو چاہیے تھا کہ وہ بدلے میں تم لوگوں کو بہت کچھ دیتے تاکہ تمہیں
हमारे घर काम ना करना पड़ता। मैंने कहा कि ये बड़ी बात है, अगर हमें यहाँ काम ना मिलता, खाना ना मिलता तो हमारा गुज़ारा कैसे होता? हमारा तो सगा भाई भी हमें छोड़ गया है। जमाल को ये सुनकर बुरा लगा कि मैं उसे छोटे साहब कहती हूँ। वो कहता कि मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, लेकिन मुझे इस बात में लिहाज आता था। सेठानी भी कहती कि जाओ छोटे साहब के लिए नाश्ता बनाओ, खाना दे आओ। एक दिन मैं जमाल के कमरे की सफाई कर रही थी कि वो आ गया। कहने लगा कि नाज़, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें इस घर में मुलाज़मा का नहीं बल्कि इज़्ज़त का मुकाम हासिल हो। तुम्हारे वालिद ने हम पर जान वार दी, ये एक उनका बड़ा एहसान था। मैंने कहा कि मुलाज़िम की बेटी को मुलाज़मा का ही मुकाम मिल सकता है, दूसरा कोई मुकाम कैसे मिल सकता है? जमाल बोला कि दूसरा मुकाम रिश्ता जोड़ने से मिलता है। मसलन अगर मेरी मम्मी तुम्हें अपनी बहू बना लें, तो तुम्हारा मकाम इस घर में ऊंचा हो जाएगा। ये नामुमकिन बात है साहिब, इसलिए मैं ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहती और ना ही सोचना चाहती हूँ। मैं नहीं समझ पाती कि जमाल मुझसे मजाक करता है या वाकई संजीदा है, क्योंकि अमीरों का तो भरोसा ही नहीं होता। मैं ये हकीकत बखूबी जानती थी कि हम एक कभी भी नहीं हो सकते। ऐसी आन हुई सोचना खुद को हलाक करने के सिवा और कुछ नहीं था। इस तरह तो इंसान का दिमाग उलझता रहता है और वो किसी काम करने के काबिल भी नहीं रहता। आज माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, दिल में दर्द हो रहा था। फिर ये दर्द इतना बढ़ा कि वो बर्दाश्त न कर सकी और शिद्दत से और बेकरार हो गई और अपने खाल के हकीकी से जा मिली। खाला आमना हमारे मोहल्ले के बराबर में रहती थी। मैं दौड़ी हुई उनके पास गई और अम्मा की तकलीफ़ के बारे में बताया। वो डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो अम्मी सो गई। फिर खाला भी चली गई। माँ को सोता देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं दोबारा खाला के पास गई और उन्हें बुला लाई। तमाम शब खाला के पास बैठी रही। सुबह अम्मी को होश आया तो उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। बुखार तेज़ हो गया। हमारे पास इतने पैसे ना थे कि डॉक्टर को दोबारा घर बुलाते। मुझे सेठ साहब को भी बताना था, इसलिए मैं उनके घर चली गई और उनको बताया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर हमारे घर आ गए ताकि माँ को अस्पताल ले जा सकें। मुझे रास्ते में अजीब किस्म के ख्याल आते रहे। जब गाड़ी हमारी गली के मोड़ पर मुड़ी तो गली में बहुत से लोग इकट्ठे थे। दिल धक से रह गया। यकदम ख्याल आया कि कहीं माँ चली तो नहीं गई। अगले लम्हे इस अज़ियतनाक ख़्याल को झटक दिया और सेठानी के साथ जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरी। सामने ही आमना खाला और मोहल्ले की औरतों के अफसरदा चेहरे नज़र आए। गोया होनी हो चुकी थी। अम्मी की नब्ज़ रुकी हुई महसूस हुई। मुझे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना सुनाई दे रहा था। तेज़ी से औरतों और बच्चों के हजूम को चीरती हुई माँ की चारपाई तक पहुँची। उनका बेजान चेहरा देखकर खड़ा रहना मेरे बस में न रहा। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। उसके बाद 2 दिन तक मुझे होश न आया। रात दिन रोती थी कि अब मेरा क्या बनेगा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मरने की दुआएं करती, मगर मौत मुंह से मांगे नहीं मिलती। आमना खाला मेरे पास रह रही थी। थोड़ी देर को घर चली जाती, फिर वापस आ जाती। उनके घर को बहू संभालती थीं। कई दिन शेर साहब के घर काम पर न गई तो सेठानी खुद आई। समझा बुझाकर मुझे गाड़ी में बिठाकर घर ले गईं। प्यार से गले लगाया समझाती रहीं कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। तुम आप मुझे ही माँ समझो, मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल करूँगी। उनका प्यार पाया तो दिल से उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे प्यार की अशद ज़रूरत थी और उन्हें मेरे जैसी मुलाज़मा का मिलना नामुमकिन था। प्यार के लिए इंसान अपनी जान भी दे देता है। मुझे भी सेठानी से प्यार मिलने लगा तो अपना गम भुलाकर इनकी सेवा में लग गई और दोबारा से उनका घर संभाल लिया। अब जमाल भी मेरे ख्याल रखने लगा था। आमना खाला रोज़ मेरे हाल दरियाफ्त करने आ जाती थी।
मैं फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। ताहम जमाल से ऐसी तवक्कात ना लगाईं जो मेरी हैसियत को ज़ेब नहीं देती थीं। एक दिन मैंने उसके कमरे की सफाई कर रही थी कि वो आ गया। कहने लगा कि किताबों को झाड़कर अलमारी में तरतीब से लगा दो। मैंने हुक्म की तामील की। वो मुझसे बातें करने लगा। नाज़, तुम इतनी अच्छी लड़की हो। मैंने सोच लिया है कि जो भी हो मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम सुकून देने वाली साबर लड़की हो, घर को जन्नत बना दोगी। जानती हो मर्द को औरत के सिवा सुकून कौन दे सकता है, और इज़्ज़त और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे वालिद ने वफ़ा की और तुम्हारी माँ ने भी, यकीनन तुम भी वफ़ा करोगी। वफ़ा ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल ही नहीं। मेरे हाथ किताबें दुरुस्त करने में मसरूफ़ थे और ज़ुबान खामोश थी, जबकि वो बोलता जा रहा था। मुझे खबर न थी कि सेठानी हमारी बातें सुन रही हैं। जाने कब वो दबे कदमों वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। वो दरवाजे के पास साकत खड़ी जमाल की बातें सुनती रहीं। ये बातें उनको सख्त ग्रां गुजरी। उसके बाद उन्होंने हम दोनों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। जमाल को पता चल चुका था कि माँ ने बातें सुन ली हैं और उनकी निगरानी से तंग आ गया। तभी एक दिन उसने इससे कह दिया कि मम्मी, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। नाज पाकीज़ा लड़की है, खूबसूरत है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाप ने हमारी खातिर जान की कुर्बानी दी और आप लोगों ने उनके कुनबे के लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप दोनों मर चुके हैं, तो नाज का कौन है? उसका क्या बनेगा? क्या आपने कभी उसके बारे में इतना कुछ सोचा है? क्या आप उम्र भर इससे अपने घर का काम ही करवाती रहेंगी? क्या दुनिया में ऐसा होता है कि एक यतीम लड़की बगैर तनख्वाह इस वजह से गुलामी करे कि उसका इस दुनिया में कोई वली वारस नहीं है? सेठानी बेटे के मुंह से ये सब सुनकर आप गोला हो गई और डांट कर कहा, अपनी तकरीर बंद करो। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम एक चौकीदार की बेटी से शादी करोगे? लोग क्या कहेंगे? हमारा स्टेटस क्या है, जानते हो? उसके बाप की जान गई तो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए इस ड्यूटी का वो हमसे मुआवजा लेता था। वो एक इत्तफाकी हादसा था। ना हमने उसे मरवाया और ना इस तरह का काम किया। उसे देखने हम पर एहसान किया। इसकी मौत इसी तरह लिखी थी। इस मेहरबानी का बदला ये है कि किसी हम पल्ला अच्छे घराने में देखभाल कर हम इस लड़की की शादी करा देंगे। मगर तुम इससे शादी करोगे और हम इसे बहू बनाएंगे। ये अनहोनी बात है। क्या दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि लड़की को इस वजह से बहू बना लो क्योंकि वो लावारिस है? मम्मी, मना करना है तो एक लफ्ज़ ही काफ़ी है कि नहीं शादी करनी। इसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। कल के बारे में आपको क्या मालूम? और ना मुझे मालूम है कल किसने देखी है। और वैसे भी मेरी शादी आज तो नहीं हो सकती। अभी मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, कुछ करना है, कमाना है। अब आप सारी बातें भूल जाएं और सुकून से आराम कीजिए। जमाल ने तो अम्मी को तसल्ली से सुकून से बिठा दिया। सेठानी ने मगर इन बातों को ना बुलाया। वो पहले मुझसे प्यार से पेश आती थी, अब गुस्से और नफरत से बात करती थी। बात बात पर कहती कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है। मैं सब समझती थी मगर चुप रहती थी। इस घर को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। कहाँ जाती? जमाल तो छुट्टियों पर आया था, चंद दिनों के लिए वापस लाहौर चला गया। उसके बाद वो महतात हो गया। घर आता भी तो मुझसे बात ना करता और ना ही मुखातिब होता। फिर सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गए तो वो घर लौट आया। माँ बाप ने उसकी शादी का तज़किरा छेड़ दिया। बताया कि एक अमीर घराने की लड़की से रिश्ता तय करना चाहते हैं। जमाल ने दोबारा कहा कि अमीर लड़की के मिजाज का पता नहीं कैसा होगा, वो शादी किसी गरीब लड़की से करेगा। ये सुनकर उसके वालिद गुस्सा में आ गए और बोले, जमाल को क्या हो गया है? पढ़ लिख कर इसकी तो मत ही मारी गई है। चौकीदार की लड़की से शादी करना चाहता है। सेठानी बोली, हाँ ऐसा ही है। शायद लड़की ने बहकाया है, गरचे ऐसी लगती नहीं,
फिर भी लावारिस लड़कियां सहारे ढूंढती हैं, बड़े घरों में समा जाने के ख्वाब देखने लगती हैं। इससे पहले कि कोई नया फसाद हो, लड़की को अपने घर से चलता करता कर देना चाहिए। अभी तो लड़का हमारे कंट्रोल में है, लड़की को गायब करो, बात बढ़ गई तो ऐसा ना हो कि हम हाथ मलते रह जाएं। मियाँ बीवी इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुझे खासी रकम देकर अपने किसी दोस्त के घर मुलाजमा रखवा दी जाए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, और मैं रकम के लालच में उनकी बात मान लूं। मैंने खाला आमना को सब अहवाल बता दिया, ये भी कि मैं उनके किसी दोस्त के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती। ये मुझे किसी दूसरे शहर पहुँचाने की बात करते हैं। पीछे से मेरा भाई आ गया, जो घर छोड़कर चला गया हुआ था। मैं उसने घर को ताला लगा देखा तो परेशान हो गया। मैं अपने बाप के पास नहीं जाऊंगी। आमना खाला बोली, इससे पहले कि ये तुम्हें निकालें, तुम खुद इनको छोड़ दो। कह दो कि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। वो घर बेचकर मुझे अपने साथ कराची ले जाना चाहता है, जहाँ वो फैक्ट्री में काम करता है। मैंने कहा, हालांकि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पूछेंगे कि कौन ज़ुबैर भाई का पैगाम लाया, तो मैं क्या कहूँगी। आमना खाला बोली, तुम कुछ मत कहो, मैं सेठानी से बात करूँगी कि मेरे पास इसके भाई का कराची से फ़ोन आया है। अगले दिन आमना सेठानी के पास गई और बातों बातों में कहा, ये आपके घर अब चंद दिन की मेहमान है। इसके भाई का कराची से मुझे फ़ोन आया था, शायद वो जल्द इसकी शादी करने वाला है। उसने मुझे बताया है कि कराची में उसने अपने एक दोस्त के साथ एक फ्लैट लिया हुआ है और वहाँ पर रहायश पजीर है। नाज की शादी का इरादा रखता है। सेठानी को आमना खाला की बात पर शक न हुआ। वो खाला पर एतबार करती थी, क्योंकि आमना खाला एक दीनदार और अच्छे किरदार की खातून थी। खाला की बातें जमाल ने भी सुन ली। अगले दिन मैं इनके घर ना गई। खाला ने मुझे अपनी बहन के घर ले जाना था। उनका ख्याल था कि मैं चंद दिन वहाँ रह लूँ, ताकि ताकि वो इन लोगों का रद्द अमल देख सकें। जब वो मुझे अपने साथ बस अड्डे पर ले गई तो जमाल ने हमें वहाँ आ लिया और खाला से कहा, आप ज़रा सा हालात को संभालिए, और मुझसे कहा, नाज तुम घबराना मत, मैं जल्द सब कुछ ठीक करके वालदैन को राज़ी कर लूँगा। फिर उसने आमना खाला को एतमाद में लिया। मैं तो चुप थी, बल्कि मुझे इस पर गुस्सा था कि वो ना इस किस्म के शूशे छोड़ता और ना मैं सेठानी के घर से निकलकर बेआसरा होती। जमाल की ही गलती थी, भला कोई माँ बाप क्यों एक मुलाजमा से अपने बेटे की शादी करेंगे। हमारा इनका मेल ही क्या था। इस हमाकत में मेरा कोई कसूर न था। सारी गड़बड़ जमाल ने की थी, वरना सेठानी तो मुझसे प्यार करती थी। मुझको इनके सच्चे भरे सलूक से महरूम हो जाने का भी दुख था। आमना खाला मुझे अपनी बहन के घर छोड़कर चली गई, जो बेवा थी। उनका लड़का फौज में सूबेदार था। वो काफ़ी दूर किसी इलाके में ड्यूटी पर था। सालेहा खाला अपनी बेटी के साथ रहती थी। शुरू में मेरे साथ मेरे यहाँ दिल नहीं लगता था। दिन रात सुलगती रहती थी, जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो, क्योंकि शुरू से ही मैं सेठानी के घर रहने की आदी हो गई थी। हर लम्हा रोने को जी करता, अपने घर के सिवा कहीं नींद न आती थी। जब खाला मुझे रोता पोता दिलासा देती तो मेरा जी करता कि कोई दिल शांत कर दे, कोई चुप ना कराए, मैं बस रोती रहूं। एक ही बात सोचती थी कि अब मेरा क्या बनेगा। कब तक खाला आमना की बहन के घर रहूंगी, कब तक इन पर बोझ बनी रहूंगी। घर लौट कर गई तो जमाल सरीना हो जाएगा। मुझे इससे नफ़रत न थी, वो मुझे अच्छा भी लगता था, मगर उसके माँ-बाप काँटों का पेड़ थे। वो ताकतवर और मैं मुफ़लिस और नातवां। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो दौलत के फ़ख्र में डूबे हुए थे। जमाल ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, मगर वो खाला आमना से राब्ते में था। मैं 3 माह उनकी बहन के घर रही। सेठानी को यकीन हो गया कि मेरा भाई आकर मुझे ले गया है, तो वो सुकून में आ गई। एक रोज़ मैं खाला के साथ चुपके से अपने घर लौट आई। आमना खाला बोली, तुम परेशान ना हो,
اب सेठ और सेठानी को तुम्हारी परवाह भी नहीं है। उन्होंने बेटी की बात एक हम पल्ला घराने में तय कर दी है। शादी साल बाद होना तय पाई है, क्योंकि लड़की पढ़ रही है। मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जो दुख था मैंने झेल लिया था। अपना घर चाहे कच्चा टूटा फूटा हो, इंसान को सुकून अपने घर में ही मिलता है। बस एक मसला परेशान करता था कि मेरा खर्चा आमना खाला उठा रही थी, और ये बात मुझे बेसुकून रखती थी। उनकी बेटी खालदा ने सिलाई और कटिंग का कोर्स किया हुआ था। वो एक बुटीक के कपड़े सिलाई करती थी। खाला ने उनके ज़िम्मे लगाया कि वो मुझे घंटा भर मेरे घर में सिलाई और कटिंग सिखाएंगी। 3 माह में मैंने अच्छा खासा हुनर सीख लिया। अम्मी की सिलाई मशीन मौजूद थी। खालदा को सिलाई के कपड़े मिलते, उनमें से वो मुझे देती कि ये तुम सिलाई करके दिया करो। इस तरह मुझे उनके पैसे भी मिल जाया करते थे कि अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीद लेती। जमाल ने एक दिन मुझे खाला आमना के घर जाते देख लिया। उसने मुझसे राब्ता किया और कहलवाया कि एक बार मुझे ग्राउंड में मिलो, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इस धमकी से तो मैं डर ही गई। ग्राउंड मेरे घर के अकब में बट्टा था, जहाँ वो खेलने आता था। मैं उसके बताए वक्त पर वहाँ चले गई। ये ग्राउंड सुबह को खाली होता था। जमाल वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन किसी तरह राज़ी नहीं होते थे। आओ हम दोनों ही इस मसले को खुद ही हल कर लेते हैं। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब शादी हो जाएगी तो मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। तब मेरे वालिदैन तुमको कबूल कर लेंगे। मैंने मैंने खाला आमना को ये बात बता दी। उन्होंने कहा कि तुम उसकी बातों में मत आना। उसकी मंगनी हो चुकी है। उसके वालिदैन को तुम कबूल नहीं, वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तुम ख्वार हो जाओगी। जमाल को दिल से निकाल दो। तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। मैं जल्द तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दूंगी। मैंने लड़का देख लिया है। मैंने खाला की बातों को ही हकीकत जाना, क्योंकि मेरा दिल भी यही कहता था कि मेरी और जमाल की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरे हम पल्ला नहीं था और मैं भी इस हैसियत की मालिक नहीं थी। उसके बाद खाला ने जमाल को कह दिया कि नाज कोर्ट मैरिज पर राज़ी नहीं। तुम उसे परेशान मत करो, उसे अपने घर में रहने दो। ऐसा ना हो कि उस परेशानी में वो अपना घर छोड़कर कहीं चली जाए। खाला आमना ने अपनी बहन सालिया से बात की। उनका बेटा जो फौज में मुलाजिम था, उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। मैं 3 माह खाला सालिया के घर रही। उन्होंने मुझे देखा, पसंद किया, बेटे से बात की और उसको राज़ी किया। इस तरह आमना खाला ने अपने भांजे से मेरी शादी कर दी और मुझे अपनी बहन के घर ले गई। उनके शौहर और बेटे वकील बने और लड़के वालों के घर पर ही मेरी अरसलान से शादी हो गई। इधर जमाल के वालिदैन ने उस पर शादी के लिए ज़ोर दिया हुआ था और उन्होंने अपनी बात भी मनवा ली। उसका निकाह हो गया, लेकिन रुखसती 6 माह बाद होनी थी, क्योंकि लड़की के सालाना इम्तिहान में अभी 6 माह बाकी थे। जब जमाल की शादी हो गई और दुल्हन घर आ गई, तब खाला आमना ने उसे बता दिया कि मेरी शादी हो गई है। मैं तो शादी के बाद दूसरे शहर जा बस गई थी। मुझे जमाल के बारे में कोई इल्म न था। मैंने इस बंधन से समझौता कर लिया था, क्योंकि अरसल बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। अल्लाह ताला बेसहारों का मददगार होता है। शादी से कुछ दिन पहले आमना खाला के शोहर ने अखबार में मेरे भाई की गुमशुदगी का इश्तहार भी देख लिया, मगर ज़ुबैर का पता चला कि वो कहीं खो गया है। आज तक मुझे अपने भाई का गम दिल में लिए फिरती हूँ। ताहम मेरी ज़िंदगी दुखों से पाक गुजर रही थी। खुशी है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी मिली और इज़्ज़त से जी रही हूँ। खाला से सुना था कि जमाल भी शादी के बाद खुशो खुरम हो गया था। यकीनन इसने मुझे बुला दिया होगा। मैंने भी उसे बुला दिया, मगर कभी-कभी ये सोचती ज़रूर हूँ कि क्या उसको सचमुच मुझसे प्यार था या ये महज़ हमदर्दी का जज़्बा था। खैर, जो भी हुआ ठीक ही हुआ।
مجھے میری محبت نہ ملی